So at close, after 15 orders, I am having this much profit. And all you see, they are all against the trend. Trend was bearish, but since it started recovering, in fact, in the morning, I was about to, I would have got this to 2100 in the morning itself when it immediately started, but I was at different table, not in front of my laptop. Only cell phone was there, and I could see that profit. One thing, and it was for 9. It was for 9 November CE only. That is this one 22,600 9 April CE. Sorry, 9 November 9 April CE. So there I got disturbed a bit, and then I tried to do again and again some trading. That led to so many orders. But next time, then I realized that this is on today is 7th April. 9th April is the Thursday, right? 9th April, the expiry is on 9th April. Maybe 10th April is holiday, I think. That is why the Wednesday there is an expiry this time. Correct? Wednesday. 9th April is the Wednesday. So only 2 days are balance. Then I thought, I think this is, and there was a lot of up and down movement because it was bearish and trying to come up. Since morning I missed the chance of booking the profit at 2100, and I was trying badly like this. I thought then let me go for, because anyway it has to come up because it is giving a strong support at monthly chart for 26 EMA monthly uh, indicator, monthly average. So that's why I have decided to go for 17th April next series option, and that relieved me. So in spite of these orders, I have, if I see here, upcoming credit is 1023, estimated charges is 301.61. If I have calculated 338, so something like 600 rupees I have won today, and that too against, because I did not go for PE, having they were very costly and it was not in my budget. So it's okay. And then trend was also reversing, so carefully looking at the trends I did try to do that, but lastly I have succeeded. Now I will have to see whether I can do something in natural gas. Natural gas, this is the international chart. As anticipated, it is going down, and it is at the moment it is trading at 3.726 dollars. $3.726. I'll put it auto scale here again. Okay, so it is a bearish. RSI is also bearish. Not bearish, it is just above 40. So it is not bearish, but it is something like sideways for
daily time frame. Hourly time frame, it is bearish. RSI is very low, less than 30, not very low, but less than 30. And now that this candle, hourly candle is trying to go up, as it is 6 a.m. in New York. Now this time is crucial time. Here it will go against the trend. So 6, 7, 8, 9, 10 will have to be very crucial. If it falls, if it is falling during that, well and good. So I have on my chart natural gas here and option here. I cannot show live trade as per the SEBI's guidelines. So that's it, and then I will come again when I will take an entry. Natural gas is increasing now after getting dropped so much, trying to recover, and I am trying to take a benefit of that by taking a CE. Let me put it on auto pit. It is growing. What is its this correct around 3.796, 3.8 roughly it might go up to, and this is what it was. It tried to go after dropping. $4.4. Now let me I need to put a stop loss. Stop loss of what price of 4.05. Set target. $4.05, 4.15 means I will get 125 rupees, and in that I will not lose the brokerage. It doesn't allow me to set target. Allow करता है क्या? I'll put 6. I can exit anytime. Let me see. I am protected now because that is such a thing that it jumps either way. Now it may go high because, but 5 minutes the strength is good, 71. For 15 minutes also it is good, so that way it is good. 63 it is. So it is going up. 15 minutes candle also, it is going up. Now 15 minutes candle is over and the strength is reduced a bit, but it is still above 60. So let me see what it's doing here. I can have 5.45 here.
Here it is what 5.4. So I will do that here. Yeah, I put 6, right? Okay, no problem. Yes, natural gas is increasing. I will allow not to exit. मैं अभी एग्जिट करना नहीं चाहता हूँ, हिंदी में बात करना है तो एग्जिट करने के लिए मेरे पास ये बटन है कैसे भी डरपोक financially. Inexperience level is giving me and uncertainties. In spite of having experience, I have experience that is RSI is so much, then it will go high and all those things. This is what is the experience. Natural gas does not necessarily it will do the same. It can drop down फटक करके कभी भी जा सकता है. That depends on also the timing. Now this is 6:45, 7 o'clock the scenario can be different. What is this? This is just a minute. ये क्या है? High is 3.793. So ये 3.793 को मैं करेक्ट डालता हूँ. है करेक्ट ही है. अब ये ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा है. इसको क्रॉस करेंगे तो उसको खतरा नहीं है, फिर ये ऊपर यहाँ तक जा सकता है. यहाँ कहाँ? यहाँ ये सोल्जर बैठा है ना इधर, ये डॉजी कैंडल, मैं उसको सोल्जर बोलता हूँ. वो बॉर्डर की रक्षा करता है. ये सोल्जर की तरह काम करता है, अटकाता है दोनों ट्रेन को, ऊपर से आने वाला, नीचे से आने वाला. नौ 782 $3.782 है. डेली में क्या है? डेली में भी ये बढ़ गया है अभी. और ये कितना है? लो इज 3.811. जाएगा क्या यहाँ तक मालूम नहीं. ये इतने हाई बनाया है 3.795. At least now I am in the right direction. Now the history is order history 16 orders. ट्वेंटी सेकंड्स के बाद कौन सा कैंडल चालू होता है वो देखना है. बट स्ट्रेंथ इज गुड 71. 5 मिनट के लिए और 15 मिनट के लिए अभी 10 मिनट बाकी है और स्ट्रेंथ इज 62 है. 5 मिनट का ही फॉलो करेंगे पहले. जा तो रहा है ऊपर. और ये पी नीचे गया, बहुत नीचे गया. सो ये 3290 पी बाद में मेरे को काम आएगा लगता है. $5.3544 तक जाएगा तो अच्छा है. और तब उसको रिटर्न जर्नी चालू हो जाएगा ना. अच्छा है, बोल नहीं सकते. आज तो ये पूरा
पॉजिटिव बन के रहेगा, स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया है। कितना हो गया? 6:55, 7 बजे। 7 बजे क्या करता है हमें नहीं मालूम। सेवन $3.783। ये तो गैप फिल करना चाहता है लगता है, बहुत बड़ी गैप है, लेकिन यहाँ से टूटा है मार्केट 328 329 से। Sometimes natural gas is so easy to deal. But sometimes, at least actually from 7 o'clock to 10:30 और 11:30, अभी मालूम नहीं क्या होगा, बाद में देखना पड़ेगा। ये तो ये तो अभी 6:50 है ना, सॉरी, और 7 बजे को 10 मिनट बाकी है यूएस के टाइमिंग में, न्यूयॉर्क टाइम। सेवन पॉइंट थ्री नाइन थ्री 3.793, 3.8 को टच करेगा। 96 क्रॉस करके ये जाएगा इधर। $835 अगर जाना चाहता है तो। फोर्टीन सेकंड के बाद क्या होता है देखना है। नीचे नहीं आना है क्या? सेवन ओ क्लॉक नहीं आया अभी तक। 7 o'clock से नीचे भी आ सकता है, या 5 मिनट में नीचे आके वापस ऊपर जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जितना है उतना बुक कर लो एटलीस्ट।
यही देखते हैं। चार मिनट बाकी है। यूं तो स्टॉप लॉस लगाया है, बट फिर भी ये व्हाट्सएप डालने के बाद गड़बड़ हो गया। आई थिंक आई शुड अनइंस्टॉल व्हाट्सएप फ्रॉम हियर। कंट्रोल पैनल, प्रोग्राम्स एंड फीचर्स। कहाँ है व्हाट्सएप? इसमें नहीं आता है क्या व्हाट्सएप? कमाल है, आईटी वालों को पूछना पड़ेगा। अनइंस्टॉल। 3.787 बढ़ना जारी है। 655। $7 मीन्स ये कैंडल रहेगा, यहाँ रहेगा ना। Commodities are sometimes good to deal with. यहाँ से उसका रिटर्न जर्नी होगा मेरे ख्याल से। ये तो आ गया ऑलरेडी यहाँ से नीचे। ये तो कैंडल है पहले वाला 50 वाला 650 वाला। यहाँ से सप्लाई को टच करके नीचे आया है, उसको सप्लाई पॉइंट को टच करके, लेकिन अभी वापस जाने की कोशिश कर रहा है। स्ट्रेंथ तो बढ़िया है अभी उसको, 74 है, वेरी गुड स्ट्रेंथ। 4.26 में डाल देता हूँ ये इसका, ये स्टेप तक डाल 4.2 को डाल देता हूँ मैं, कुछ तो मिले। बोनस में 4.2 ज़्यादा नहीं है, फिर भी कर देता हूँ ना, ₹5 तो। ₹62 तो एडिशन हो जाएगी उसको। कुछ नहीं तो 187 मिलेंगे। 750 हो गया, वेरी गुड।
मतलब जा रहा है ऊपर। डर क्यों लगता है? ये नीचे आने लगेगा तो कभी कभी धाड़ करके नीचे आ जाता है। इसके लिए आई हैव टू बी प्रोटेक्टेड। देखो देखो ये क्या हो रहा है अरुण भाई। स्ट्रेंथ अच्छा है, इसके लिए शायद नहीं आएगा नीचे। 72 है RSI, which is a good at 5 for 5 minutes, and then for 15 minutes बढ़ गया होगा अभी। Yes, 15 minutes it is now 68, so it's a good sign. ये लाइव का दिखा सकता हूँ मैं, निफ्टी का नहीं है ना, इंटरनेशनल मार्केट का है। तो क्या होता है लाइव चार्ट दिखने से? आई एम नॉट इन्फ्लुएंसिंग एनीबडी, आई एम नॉट अ इन्फ्लुएंसर एट ऑल। हाँ, ये नंबर देख के शायद इन्फ्लुएंस हो जाते होंगे, बट जो इन्फ्लुएंस होते हैं उन्होंने उनका काम खुद करना है, खुद देखना है। अगर उनको गाइडलाइन मिले मेरी एक्सपीरियंस से तो बहुत बढ़िया है। और मैं इन्फ्लुएंस तो करता नहीं हूँ, मैं सब बकवास भी दिखाता हूँ मेरा, मैंने क्या क्या गलती किया आज आज के वीडियो में है वो, तो उससे भी वो समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं करना है करके। मैं शेयरिंग इसके लिए करता हूँ, नॉट फॉर टीचिंग और नॉट फॉर गिविंग, क्योंकि मेरी औकात नहीं है उतनी। लोग तो 100 लॉट खरीदते हैं। आई हैव सीन इन सम वीडियो नेचुरल गैस 60 लॉट्स 70 लॉट्स, पैसे बहुत है उनके पास। इसको सिंपली अभी इसको मल्टीप्लाई पे 10 करूँ तो 8,000 रुपीज़, नहीं, हाँ 8,000 रुपीज़ हो गया ना। 10 लॉट था तो पैसा नहीं है, बड़े बड़े 8,000 रुपीज़ मिलता था मेरे को। डालूंगा बाद में, जब कॉन्फिडेंस आएगा तो डालूंगा, तब तक नहीं डालूंगा। मेरा ब्रेन और माइंड एक साथ चलेगा तब डालूंगा, वो डिसिप्लिन आना चाहिए। जैसे आज मेरे पास डिसिप्लिन नहीं था, 2,000 रुपये दे रहा था, ऑप्शन है भाई, 2,000 रुपये 2,000 रुपये कमा लो। वो भी बेरिश, जब मार्केट वॉज बेरिश, आई वॉज गेटिंग 2,000 रुपीज फॉर CE कॉल, और मार्केट वॉज डम्प्ड लाइक एनीथिंग 1,000 पॉइंट्स। मिलता है तो लेने का ना, वो दिमाग में नहीं आया, वैसा अपॉर्चुनिस्ट मेरा नेचर नहीं है लगता है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। हियर यू हैव टू बी अपॉर्चुनिस्ट इन ऑप्शन, अपॉर्चुनिज्म होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये गड़बड़ करेगा, तो क्यों न मैं निकल जाऊं। और रुको बिकॉज रुको बिकॉज ये स्टेप दे रहा है, स्टेप स्टेप अप जा रहा है, स्टेप अप, इट इज बिल्डिंग ए लैडर। पानी पीना है जो। फोर 4.3 कर देता हूँ।
ताकि नीचे आएगा तो भी थोड़ा तो और प्रॉफिट मिलेगा। ऊपर जाएगा तो अच्छा ही अच्छा है। 4.3 मतलब यहाँ है, एक स्टेप डाउन, वन स्टेप डाउन। क्योंकि ये 7 बजे क्लॉक आएगा, आने वाला तो आएगा, अब उसे मार लेके जाएगा। देखो देखो ये क्या हो रहा है। मैं क्यों एग्जिट नहीं कर रहा हूं अभी, क्योंकि ये अभी भी जिंदा है, 61 है। बट नेचुरल गैस में बोल नहीं सकते, पट करके 60 के नीचे जाएगा। एक कैंडल काफी है। ये 66 है इसके लिए। हाँ सॉरी, मैंने वो चार्ट दिखाया ना, ये 66 है। बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है 5 मिनट के लिए, और 15 मिनट के लिए भी अभी डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। 15 मिनट का मतलब ये 15 मिनट में वो नीचे आने की संभावना है। बट स्ट्रेंथ तो 61 है। देखिए क्या होता है। गया बैल मुझे मार, लेकिन मारते मारते पैसा तो दे के गया। 300 आ रहा, ओके। वो अभी कैसा हो गया, 17 × 26 -1334। सो 892 रुपीज मुझे मिला है अभी तक का। अब एंट्री करना मुश्किल है चालू रेंज में। बहुत क्लोज वाला डाला था, क्योंकि मेरे को वो ब्रोकरेज भी निकालना था। ये देखो, यही मूर्खता है ना मेरी। एक तो मालूम है यहाँ से वो नीचे आ रहा है, ये सप्लाई लाइन में यही निकलता था मैं, और 2 से 1 रुपये मिलता था। मुझे लगा ये स्ट्रेंथ ज़्यादा है। कहाँ गया 5 वाला, स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ये ऊपर जाएगा। लेकिन 7 बजने की बाद कुछ होता है। अब पी तैयारी करना है, क्योंकि ऊपर से नीचे आ सकता है। हालांकि स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, इतना जल्दी पी सोचते नहीं। टॉप फायरिंग करना नहीं है, टॉप फायरिंग, टॉप नहीं बनाया अभी तक। ये अभी भी इतना है, 535 नीचे जाना है। कितना हो गया भैया, कितने में मारा उसने, 430, 4.3 को मारा है ना उसने। अब ये यूं ऐसा चलेगा ना तो ऑप्शन खा लेगा वो। यहाँ लिया था मैंने, ये 2 कैंडल के बाद ऐसे ही यहाँ लेना है। बैलेंसिंग होना चाहिए।
यहाँ मैंने लिया तो एक्चुअली स्ट्रेंथ कम था, देखो अरुण, तो स्ट्रेंथ कम में लिया था, तो बाद में ये यहाँ लिया था शायद मैंने, यहाँ इस कैंडल के ऊपर, और ये ऐसा गया। यहाँ मिलेगा ना, पता चलेगा यहाँ भी। ये कितने का है, 5 मिनट का है ना, यहाँ भी पता चलेगा। यहाँ हाँ, 4.05 में लिया था, यहाँ लिया था, तो यहाँ स्ट्रिंग क्या थी, हाँ यहाँ से 60 थी, ऑप्शन की 60 थी। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ लिया था मैंने, जस्ट 60 क्रॉस किया था। भूल जाता हूँ असल में थोड़ा। ये अभी काफी फार दूर वाला ऑप्शन लिया हूँ, अभी जाएगा इतना तो 100% नहीं जाएगा, और उसके ऊपर 4 रुपीज का प्रीमियम है, मतलब ये 374 जाएगा तो ब्रेक इवन हो जाएगा, इतना तो नहीं जाएगा ये। ऑप्शन में ये भी देखना पड़ता है अरुण, बट हालांकि डेल्टा कैसा है, डेल्टा ये क्या है, चलिए यार, ये वापस कोशिश तो कर रहा है, बट ऐसा नहीं, कोशिश करेगा तो जाएगा ही करके, क्योंकि इतने स्ट्रेंथ के बावजूद वो नीचे आया। अब तो मैं ले भी नहीं पाऊंगा। अगर बाय करना चाहता हूं तो भी नहीं ले पाऊंगा। यहाँ कभी कभी यहाँ से नहीं लेता है और यहाँ से हो जाता है। 370 कहाँ है, सीई, यहाँ ले सकता हूँ मैं, नहीं ले सकता हूँ अभी भी। कोई बात नहीं, ये देखो वरुण, देखो ये नीचे आने की संभावना ज्यादा है, अभी पी को जनरेट करना चाहिए। इसको मैं 300 नहीं, इसको मैं 280 कर देता हूँ। अभी ये कितना है चल रहा है, कैलकुलेट करेगा। 3.782, 325.4, 86 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, मतलब 86 रुपीज करेंसी है, लगता है अपनी अभी बीच में नीचे आई थी। तो
280 के लिए कितना आएगा डॉलर्स? $3.25. $3.25 बोलेगा तो इससे भी नीचे 3.6, इससे भी नीचे आना चाहिए ब्रेक इवन के लिए। ब्रेक इवन वो स्ट्राइक प्राइस मीट करने के लिए। ब्रेक इवन तो और ₹3 नीचे। 3 कितना है वो? 3.65। यारा ये तो जा रहा है ऊपर। ये 115 हो गया। यही नाचेगा वो, और इसका प्राइस खा लेगा। चलो वीडियो बंद करता हूँ। मैंने एक एंट्री लिया है, बट फॉर डिफरेंट सीई कॉल लिया है। नेक्स्ट स्टेप 10 रुपीज़ ज़्यादा वाला कॉल लिया है, 380 वाला। 380 का कॉल अगर मैं लेता हूँ तो 380 आने के लिए उसको 4.41 की ज़रूरत है डॉलर की, और ये जो है ये 4.55 का उसका रिटर्न है यहाँ से। तो गुंजाइश है स्ट्रेंथ वगैरह देख के कि ये जाएगा ऊपर। इसके लिए लिया हूँ। और ये रेड कलर का जो है वो स्टॉप लॉस है मेरा। कितने में लिया है मैंने? 3.5 में लिया है, और 3.45 मेरा स्टॉप लॉस है। देखेंगे कैसा होता है। अभी मैं स्टॉप लॉस चेंज नहीं करूँगा जो पहले किया था वो, क्योंकि पहला वाला मेरे को हिट करके देखो कितना बढ़ गया वो। 4.3 में हिट किया, अभी ये 5.3 हो गया। बोलेगा तो 1200 रुपया बढ़ गया वो इधर। अभी मैं उसको नहीं निकालूंगा स्टॉप लॉस को। अगर ये यहाँ से रिटर्न आना चालू करेगा तो करूँगा। 3.847 गया वो। आज नेचुरल गैस अच्छा चल रहा है, एंड मैं भी उसके साथ में हूँ, ट्रेंड के साथ में हूँ। दिमाग मेरा ठीक काम कर रहा है। आइडेंटिफाई भी अच्छा हो गया है मेरा, आइडेंटिफिकेशन, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, और दैट इज वो सब बेस्ड ऑन RSI।
अब इसका RSI 81 हो गया एक ऑप्शन का। 4.55 ये जाएगा तो मेरे ख्याल से, नहीं कितना 380, कुछ गलत किया मैंने। 380, 4.1 और 330.5। सॉरी मैंने तो कुछ गलती किया लगता है कैलकुलेट करते समय। ये कितना है? 3.846, 330। 85.08 सपोज रफली, क्योंकि कैलकुलेट करते मैं एक्चुअल कितना था मालूम नहीं, तो पहले वाले कैलकुलेशन में 86 आ गया था। ठीक है, मैं अब ये मेमोरी में डालता हूँ। और अभी ये है 380। सो 380 आने के लिए डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल 4.42 आना जरूरी है। मतलब ये यहाँ जाएगा तो आएगा 380 आएगा, ऐसा भी है लगता है। ठीक बरोबर है। ऑटो फिट करूँगा तो ये है 336 है ये, क्यों 339 है ये तो। 380 तो ऊपर है बहुत, ये क्या लोचा है समझता नहीं है। गलत कर रहा हूँ क्या मैं कैलकुलेशन? $380 डिवाइडेड बाय 85.8, $4.42 नहीं हो सकता ये, क्योंकि 4.4 तो अब भी आएगा। ये क्यों ऐसा हो रहा है? ठीक है वो अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, डॉलर देखना है ना। $4.4 बहुत ऊपर है। मैं वो सब रुपीस का देख रहा था, ऑप्शन का देख रहा था। ऑप्शन का नहीं, ये है $4.4 देखना है ना मुझे। 4.4 बहुत ऊपर है, यहाँ भी नहीं है, तो 380 आया ही नहीं था। ठीक है, ऐसे क्यों कंफ्यूज होते हैं वरुण? ये तो इसका है ना, ऑप्शन का डेटा। ये 4-4 मैच हो गया, इसके लिए तो हो गया 4.65 था ये। और उसके बाद में ये है ये कितना है? 5। करेक्ट डाल दिया। करेक्ट डाल दिया। आज मस्त ऊपर जा रहा है। नेचुरल गैस ऊपर जा रहा है। इसका ओपन, इसका क्लोज भी तोड़ दिया एक पहले वाला कैंडल का। वो क्लोज था 3.837, अब भी उसके ऊपर जाएगा। $3.84 है।
5 मिनट में देख लेंगे। क्या बुक कर लूँ उतना ही थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बताने इतना ही क्या कितना बजा है अभी 7:40। वो कैसे ही सप्लाई में रो रहा है वो, और मैं ये वापस ले सकता हूँ क्योंकि 4 ही है उसका। तो चलो बुक करते हैं। करूँ या न करूँ? स्ट्रेंथ तो अच्छी है, क्यों बुक करूँ मैं? स्टेप वाइज जा रहा है, मेरा ही लॉजिक को मैं मारने जा रहा हूँ ऐसा बुक करता हूँ तो। डरना नहीं यार। फाइव में लिया है 45 3.45 मतलब 62 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है। तसा शर्ट ठेवून धुवायला टाकायचा उद्या। ये सब लाइन मरा हुआ निकाल देता हूँ, जरूरत नहीं है। अभी और एक स्ट्रिप बनाएगा क्या? क्या फ्लैट कर देगा? बहुत ही पावरफुल चल रहा है अभी। चलो इसको मैं स्टॉप करता हूँ वीडियो को, बाद में वापस ले लूँगा। उसने और एक स्टेप बना दिया है इधर, सो इसके लिए अभी मैं इसको नहीं निकाल रहा हूँ। शिफ्ट किया था उसको इधर, अब ये थोड़ा और ऊपर जाएगा तो मैं ये स्टॉप लॉस इधर शिफ्ट करूँगा। या अगर ये नीचे आएगा यही कैंडल में तो मैं यहाँ से दबा के निकल जाऊँगा। स्ट्रेंथ तो बढ़िया 83 गया अभी, 86 83 86 में कर रहा है। और 15 वाला काम क्या कर रहा है? 15 भी बढ़िया 80 चल रहा है। RSI बहुत पावरफुल स्ट्रेंथ है इसमें। 3.917 का फर्स्ट टारगेट है और सेकंड इज 3.54। तो वैसे ही इधर मैं थोड़ा जूम करके देख लूँ, ये दो तो है। इसके बाद में यहाँ कुछ तो रेजिस्टेंस दिखा रहा है वो छोटा, तो यहाँ एक ऐसे ही डाल देता हूँ मैं पता होने के लिए। ये कितना है? ग्रीन कैंडल 6 रुपीज़ में डाल देता हूँ मैं। मतलब ये मेरे हिसाब से वो रेजिस्टेंस पॉइंट्स है।
अभी इधर भी 84 चल रहा है। यहाँ स्टॉप लॉस तो नहीं डालूंगा, अगर नीचे आता है तो फर्स्ट ट्रिगर कर दूंगा इसके नीचे, या डाल दूं चलेगा। ये आगे मुझे मार तो नहीं हो जाएगा। पाँच मिनट का कैंडल देखता हूँ। यहाँ भी ऐसे ये एक कैंडल डॉजी है और यहाँ भी एक कैंडल डॉजी है, सेम ही है, बराबर होना ही चाहिए सीई और एक्चुअल। इसमें एक एक ही साथ डांस कर रहे हैं, टून टून एक ही साथ चल रहे, हाथ में हाथ डाल के, हाथों में हाथ लेके डाल चाहे दोनों। 4.65 क्रॉस करेगा तो 5 का एक टारगेट है। जब तक ये स्टेयरकेस फ्लैट नहीं होता मैं एक काम बाहर निकलूंगा नहीं मैं इसमें। ये एक भी स्टेप फ्लैट होता है, मतलब प्लाटो बनता है तो मैं बाहर निकलूंगा। अच्छा है, इसमें वो नहीं दिखता है प्लाटो वगैरह ऐसा सब। ये तो स्ट्रेट है, बट वो स्टेप लाइन होता तो अच्छा होता था, स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाता है। ये आने लगा वापस, क्योंकि यहाँ उसको सप्लाई है, बट वास्तव में क्या है, वास्तव में इसको भी सप्लाई है क्या किधर? हाँ ये है इसको सप्लाई एक छोटा, कितने का है? 3.869। उसी को लड़खड़ा रहा है वो। उसने क्रॉस कर दिया उसको। फील्ड ऑफ इंफ्लुएंस थोड़ा तो है। ये जोर से नीचे आएगा तो गड़बड़ है, यहाँ रख लेता हूँ मैं, थोड़ा सा नीचे लेता हूँ। क्योंकि इस सिचुएशन में अभी कितना बजा है? 7:55, 8 o'clock कुछ भी हो सकता है वापस। अगर इसके साथ में जाके निकल जाएगा तो अच्छा है। वन मिनट बाकी है, 1.52 मिनट, 1.54, 54 सेकंड्स, 1 मिनट 50 सेकंड्स बाकी है। अभी इसको ठोकेगा लगता है ये।
मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट के लिए ये सब करना जरूरी है। अगर लक है तो मैक्सिमाइज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से नीचे आने को उसको थोड़ा सा ये सपोर्ट का काम करेगा। वन मिनट। इसके आगे की कैंडल क्या होती है देखना है, अभी इसमें देखेंगे स्टेप बनाती है या नहीं बनाती है। एक स्टेप ऊपर जाएगा तो ये सेफ है। नेक्स्ट कैंडल स्टेप तो बनाया उसने छोटा, चढ़ रहा है, स्टेप चढ़ रहा है वो। इट इज ट्रेकिंग ऑन द फोर्ट। $3.917 and 3.960 ये लिमिट है। ऑप्शन के लिए भी एक बहुत ही बढ़िया है 26 and 9 EMA विथ स्टेप लाइन्स भी बहुत समझता है क्लियरली। मेरे लिए तो अच्छा लगता है वो। और स्टॉप लॉस इंक्रीज करने के लिए, ट्रेलिंग करने के लिए बहुत अच्छा काम आता है। अभी ये बड़ा स्टेप ले रहा है, छलांग मारा उसने, मस्त छलांग मारा। नहीं नहीं मार रहा है। 3 मिनट्स बाकी है। $917 को टच करके आया वो। उधर सप्लाई है ना, लेकिन इधर स्ट्रेंथ भी ज़्यादा 88 है, RSI भी 88 है। यहाँ RSI थोड़ा सा ऊपर नीचे कर रहा है, बट फिर भी 79 है। ये किसका है? CE का है। और इसको छोड़ के यहाँ देखिए एक्चुअल नेचुरल गैस का, तो यहाँ सप्लाई है उसको। मैंने लाइन नहीं डाली है क्योंकि आई एम इंटरेस्टेड इन ऑप्शन, नॉट ऑन अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट को मैं इधर देख रहा हूँ, नेचुरल इंटरनेशनल मार्केट का प्राइस। हालांकि ये न्यूज़ पढ़ा नहीं मैंने, क्या न्यूज़ है? एवरीथिंग इज सो एक्सपेंसिव।
लॉस एंजल्स। ये कौन सा है कंट्री? ऐसा नहीं है। साउथ अमेरिका। महंगाई बढ़ गई साउथ अमेरिका में। और एक स्टेप आ जाएगी क्या? यस, स्टेप तो आ गई। मैं वीडियो छोटा करने के लिए थोड़ा देर बंद कर देता हूँ। Considering this kind of nature, this characteristic, मतलब ऊपर नीचे हो रहा था यहाँ, और यहाँ कभी उसने 917 तोड़ के वापस नीचे आने की गुंजाइश है उसकी। और थोड़ा ये ट्रेंड भी बदल गया, मतलब RSI इज डिक्लाइंड। तो डर से मैं थोड़ा स्टॉप लॉस ऊपर लगा दिया। ठीक है, निकलूंगा तो प्रॉफिट में ही निकलूंगा। देखना है अभी 1 मिनट में कैंडल कैसी बनती है। अभी उसने एक सर्ज अच्छी मारी थी, यहाँ ऊपर गया था, यहाँ तक गया था वो। जा भी सकता है अभी ये कैंडल के बाद क्या होता है देखना है। क्यों निकालो? अगर स्टेप बनती है तो मैं निकालूंगा नहीं, प्लेटो बनता है तो निकालूंगा। अनएक्सपेक्टेड स्विंग के लिए हमने लॉ ये स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर रखा है, सो दैट आई एम प्रोटेक्टेड। हालांकि ये भी 80 हो गया, मतलब ये 88 से 80 हो गया। स्ट्रेंथ डिक्रीज बाय हाउ मच परसेंटेज? 88 डिवाइडेड बाय 80, 10% डिक्रीज हो रही स्ट्रेंथ। वापस फ्लैट है, मतलब ऊपर कोशिश तो करेगा जाने की। निरीक्षण क्या करेगा मालूम नहीं। ठीक है, बच तो रहा है, एक स्टेप ऊपर गया है ऑप्शन का भी। सो ये ऐसी चाल है ना, तो ठीक है, मज़ा आता है, कॉन्फिडेंस भी आता है, टेंशन नहीं रहता है, शांति से अपना काम करते रहो, न्यूज़ देखो, कुछ भी। क्या हो गया इधर?
यहाँ से क्या होता है जी, जैसे ये इसके बाद क्या होता है, 3 मिनट बाकी है। हालांकि ट्रेन तो अपनी है फ्रॉम EMA 9, ये पूरा जाने वाला है मैं, बट स्ट्रेंथ है क्या ऊपर जाने के लिए? अभी स्ट्रेंथ कम हो गई, थोड़ा फ्लैटनिंग हो गया, 82 है, 88 से 82 हो गया अभी। नहीं, पीक 90 का था, 90 से 82, 90 डिवाइडेड बाय 82, 9%, 9.1% नीचे आ गई है स्ट्रेंथ। थोड़ा सा डर गए बाइंग करने के लिए, कंफ्यूजन है, डॉजी कैंडल बनेगी लगता है यहाँ। अब ये 2 मिनट बाकी है, 2 मिनट के बाद कैसा होता है देखना है। गीत है यहाँ 1.57, ये इस समझेगा क्या होता है। ये कितना डिफरेंस है अभी, 4.85 और 4.65 ना, कितना है ऑर्डर? 4.5। मारेगा इसको। चलेगा। हम्म, 1250 मिला। तो अभी पोजीशन क्या है यहाँ? एस्टिमेटेड चार्जेस 407, अपकमिंग क्रेडिट 205, 2000 तो हो गए, ठीक है। अब मैं वीडियो बंद करता हूँ फॉर द नेक्स्ट एंट्री।